قرآن میں ایک لفظ ہے مسنا و سلاسا و ربا، دو دو، اور اس آیت کے سب خیریت آج آپ بہت پریشان نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، طبیعت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، دو دو۔ اب دیکھیے یہاں سے ہم پڑھاتے ہیں آپ کو کہ تمہید پڑھیے، چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی بلند آواز میں پڑھیے تو تھوڑا سا پڑھیے۔ ہم پڑھیں گے۔ مثنوی اردو کے چار اہم اور مشہور شعری اصناف میں سے ایک ہے۔ جی یہ خارجی یا بیانیہ شاعری کی نمائندہ صنف ہے، جس میں عشقیہ داستانوں کے علاوہ فکر انگیز مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ شاعری کی دیگر اصناف پر مثنوی کو اس کی بعض خوبیوں کی وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ چنانچہ حالی کہتے ہیں مثنوی سب سے زیادہ مفید اور باکارآمد صنف ہے۔ اسی طرح شبلی لکھتے ہیں یہ صنف تمام انواع شاعری کی بنسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع اور زیادہ ہماگیر ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ عربی میں مثنوی نہیں پائی جاتی ہے۔ اردو کے قدیم دکنی شعراء نے فارسی سے خوشہ چینی کر کے دکنی میں مثنوی کی روایت کی داغ بیل ڈالی۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور محبوب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دکنی کے ہر بڑے شاعر نے مثنوی لکھی۔ دکنی دور دراصل مثنوی کا دور تھا۔ اس اکائی میں شمالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء کا جائزہ لیا جائے گا۔ بس اس سوال میں 5 سوالات ایسے ہیں جو دیگر کسی بھی کتاب میں نہیں ملنے والے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اصناف اشعار میں وہ کون سا صنف ہے، وہ کون سی صنف ہے جو عربی میں نہیں پائی جاتی ہے؟ مثنوی۔ لفظ مثنوی تو عربی زبان سے نکلا ہے، لیکن صنف مثنوی عربی زبان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں بالکل تازہ اور ازبر یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، وہ کون سا ادیب ہے جس کا قول یہ ہے کہ مثنوی صنف تمام انواع شاعری کی بنسبت، یعنی شاعری کے جتنی قسمیں ہیں ان کی بنسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع اور ہمگیر ہے؟ تو یہ علامہ شبلی نعمانی کا قول ہے۔ چونکہ عام طور سے اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو لوگوں کا ذہن بھاگتا ہے حالی کی طرف۔ صحیح جواب کیا ہو گیا؟ علامہ شبلی نعمانی۔ حالی کا قول کیا ہے؟ حالی کہتے ہیں کہ مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف سخن ہے۔ یہ آپ کو لکھ لینا ہے اور رٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیگر اشعار کے دیگر جو اصناف ہیں ان میں، یا اس کو یوں کہ پوچھ لیجئے کہ شعری اصناف میں وہ کون سا صنف ہے جس میں عشقیہ داستانوں کے علاوہ فکر انگیز مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ عشقیہ باتیں ہوتی ہیں لیکن فکر انگیز باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، یہ تو اصناف کی باتیں، زندگی میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ بات آپ اپنے والدین سے کہہ سکتے ہیں، کچھ بات آپ اپنے ہم سفر سے کہہ سکتے ہیں، کچھ بات ایسی ہیں جو آپ اپنے دوست کو صرف کہہ سکتے ہیں، اور کچھ بات ایسی ہیں جس کو صرف آپ خود سے کہہ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور تجربہ میں لے سکتے ہیں، اور کچھ بات ایسی ہیں جو کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ساری باتیں الگ الگ ہیں۔ جس طرح اصناف اشعار تو بہت ہیں، جیسے غزل میں عشقیہ بات ہوتی ہے، حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں، سب باتیں ہوتی ہیں۔ ان سب کے باوجود کہا کہ عشقیہ داستانوں کے علاوہ فکر انگیز مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی تخیل اور پرواز پر مبنی کہانیاں بیان ہوتی ہیں۔ کس میں؟ مثنوی میں۔ یہ مثنوی خارجی بیانیہ شاعری کی نمائندہ صنف ہے۔ اب اگر ایک بات آپ سے پوچھ لیا جائے کہ چونکہ حیت کے اعتبار سے اشعار کی دو قسمیں ہیں، خارجی اور داخلی، تو خارجی کا سب سے اہم صنف کون ہے یا نمائندہ صنف کون ہے؟ وہ مثنوی ہوگا، اور داخلی میں غزل۔ یہ آپ کو یاد کر لینا۔ آگے آ جائیے آپ۔ اردو کے قدیم شعراء نے فارسی سے خوشہ چینی کر کے دکنی میں مثنوی کی روایت کی داغ بیل ڈالی۔ پتہ یہ چلا کہ اردو زبان و ادب کے اندر مثنوی کی جو روایت چلی ہے وہ فارسی زبان و ادب کے ذریعے چلی ہے۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور محبوب صنف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک سوال یہ آئے گا کہ دکن کے اندر شعراء اور ادبا کے سب سے محبوب اور مرغوب صنف کون سا تھا یا کون سی تھی؟ تو یہ ہو جائے گا جو ہے کہ مثنوی۔ اب مثنوی دیکھیے یہاں سے ہم
दक्कन क्या करें कि दक्कनी दौर दरअसल मसनवी का दौर था। अब एक सवाल कभी कभी आ जाता है इक्तबास से, किसका दौर था? मसनवी का दौर था, यानी सबसे ज्यादा मसनवियां यहाँ कही गई। इसी के बिल मुकाबिल ना बात आई थी कसीदा। कसीदे की इब्तदा दक्कन में जरूर हुई, लेकिन इस सब के बावजूद कसीदा जो है कहाँ फला बढ़ा? तो दक्कन में नहीं बढ़ा। उसकी वजह भी बताई थी, क्योंकि शियार थे, उलमा थे वहां। ये बातें हो गई, इसको आपको लिख लेना है। चलिए यहाँ से आप कोई पढ़िए और। सर हम पढ़ें। शुमाली हिंद में मसनवी के आगाज से बहस करते हुए बाज मुहक्किकीन ने बाबा फरीद गंज शिकर और हजरत अमीर खुसरो से मंसूब बाज अशार को शुमाली हिंद की मसनवियों के अवलीन नमूने करार देने की कोशिश की है, लेकिन इन अशार की जुबान इतनी साफ है कि इन्हें बाबा फरीद और अमीर खुसरो की तसनीफ समझना गलत है। अफजल मुतफी अफजल 1035 कबल मसीह और मुतवफ़ी 1625 की बुकट कहानी को शुमाली हिंद की पहली मुस्तनद मसनवी माना जाता है। बुकट कहानी दर हकीकत 12 मासा है, जिसमें सर ये कलरिंग का हटाइए ना, नहीं दिख रहा हूँ इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ कोई ऐसा कलर जो, अच्छा ठीक है चलिए जी। बुकट कहानी दर हकीकत 12 मासा है, जिसमें एक बीवी अपने शोहर की जुदाई में हर महीना अपने दिल पर गुजरने वाली कैफियत का इजहार करती है। 12 मासा मसनवी से अलग एक मुस्तकबिल सिन्फ है। शुमाली हिंद के कदीम तरीन मसनवियों में शेख अब्दुल्ला अमीन की मसनवी फ़क़ह हिंदी अहम है। अमीन ने ये मसनवी औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में लिखी। इसका सन तसनीफ 1074 हिजर और 1644 है। इसमें फ़क़ही मसाइल बयान किए गए हैं। इसी दौर में महबूब आलम अशरफ शेख जीवन ने 4 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनके नाम ये हैं: महशरनामा, दर्दनामा, ख्वाबनामा, पैगंबर और धीरनामा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और अनहा, इनमें दर्द फातिमा अनहा सुन के अनहा पढ़िए, फातिमा अनहा। और गुस्से में दिमाग जी है तो कोई पकड़ाएगा तो कस के डांट दूंगा, इसी हिसाब से पढ़िए सोच सोच के। जी सर। हाँ। इसमें दर्दनामा तवील मसनवी है, जो तकरीबन 3,500 अशार पर मुश्तमिल है। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और विसाल के वाक़यात बयान किए गए हैं। बस शुमाली हिंद के जी रुक जाइए, कुछ चीज़ें इसको समझने की ज़रूरी है। कह रहे हैं कि शुमाली हिंद में मसनवी के आगाज़ से बहस करते हैं, ठीक है। अब मुहक्किकीन की राय क्या है देखिए। बाद लोगों का कहना है कि बाबा फरीद गंज शकर और हज़रत अमीरुद्दीन खुसरू से मंसूब बाद अशार को शुमाली हिंद की मसनवी के अवलीन नमूना करार देने की कोशिश है। बाद लोगों की राय ये है, ये बात है। इसीलिए तो जब दलाल की बात आती है तो उसमें एक होता है कि कवि, ज़ईफ़ को भी माना जाता है। लेकिन एक और अब्दुर्रब याद है आपको, या किसी को भी याद है कि दलाइल में जो 4 ऑप्शन होते हैं कि एक कवि, एक ज़ईफ़ और एक और ऑप्शन था, वो नहीं था। तो चूंकि जैसे देखिए ज़ईफ़ की मिसाल ये हो गई कि कुछ लोगों का कहना ये है कि बाबा फरीद गंज शकर और हज़रत अमीरुद्दीन खुसरू के अशार को मसनवी करार देते हैं। एक दलील है, चाहे मजबूत नहीं है। अफजल मुतवफ़ी भी पढ़ते हैं, मुतवफ़ा भी पढ़ते हैं। तो मुतवफ़ी इसमें फ़ाइल हो जाएगा और मुतवफ़ा हो जाएगा इसमें मफ़ऊल। कारण 1625 की बिकट कहानी को शुमाली हिंद की पहली मुस्तनद मसनवी करार दिया जाता है। ये आपको भी याद कर लेना है कि बिकट कहानी कब लिखी गई? 1625, और ये है हिजरी के एतबार से 1035। कितना है? 1035। याद कर लीजिएगा, दोनों तरह के सवाल आते हैं। अब ये सवाल इस तरह भी आएगा, शुमाली हिंद की पहली मुस्तनद मसनवी कौन सी है? तो बिकट कहानी है। कब लिखी गई? 1625 में। और किसकी है? तो अफजल जी, अफजल की है। अब आगे आ जाइए। बिकट कहानी दर हकीकत 12 मासा। जी पूछिए। मतूफी मतलब ये 1625 में इनका इंतकाल हुआ, मुतवफ़ी पढ़िए या लेकिन मुतवफ़ा पढ़िए, दोनों पढ़ सकते हैं। अरबी जुबान का लफ्ज़ है। मुतवफ़ी पढ़ेंगे तो इसमें फ़ाइल हो जाएगा और मुतवफ़ा पढ़ेंगे तो मफ़ूल हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार सवाल इंतकाल पूछिए। बोलते हैं ना। जी
اب آگے آ جائیے. بکٹ کہانی در حقیقت 12 ماسا ہے. اچھا یہ سوال یہ بن سکتا ہے کہ بکٹ کہانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو 12 ماسا ہے. 12 اس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینہ اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے. اب 12 ماسا سے کیا مراد لیا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے لکھ کے بتا دیا کہ 12 ماسا سے مراد یہ 12 مطلب 12 مہینہ اور ماسا لگا کے بتا دیا کہ ایک شوہر کی جو جدائی ہوتی ہے تو جو کیفیات ہوتے ہیں جو اثرات ہوتے ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا رو دھو کر. 12 ماسا مثنوی سے الگ ایک مستقل صنف ہے. بالکل ہو بہو مثنوی تو نہیں ہے لیکن کہا اس سے قریب تر ہے کچھ الگ ہے. آگے آ جائیے. شمال ہند کی قدیم ترین مثنویوں میں شیخ عبداللہ امین کی مثنوی فقہ ہندی اہم ہے. امین نے یہ مثنوی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھی. اس کا سن تصنیف 1074. 10 سال کم کر دیجئے, 10 سال نہیں, 74 64 54 30 سال کم کر دیے, کتنا ہو جا رہا ہے 1044. 1044. لیکن کچھ سوالات کے جو وہ ہے نا سن غلط بہت جگہ ہے. مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیے. کون بول رہے ہیں, کون بول رہے ہیں؟ میں آتا ہوں آدھا گھنٹے 20 منٹ میں. ٹھیک بس آ رہا ہوں. ٹھیک دیکھیے یہاں غلطی ہے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اوپر والا دیکھیے بکٹ کہانی کا سن کیا دیا ہے. بکٹ کہانی کا سن دیا ہے 1035. 1035. ہاں 1035 غلط بول دیا گا میں نے. نہیں صحیح دراصل 10 35 بھی بول سکتے ہیں. مائک بند کیجیے, 1035. مائک بند کیجیے, سنا کیجیے اس کو میں کیا بول رہا ہوں. غلطی تو ضرور بتائیے لیکن بغیر غلطی نہیں. 1035 نہیں سر اس کو نہیں 1035 پڑھتے ہیں ہجری میں. کس نے کہا کہ 10 نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے کہ 10 نہیں پڑھتے ہیں 1000 پڑھتے ہیں؟ عام طور پر اس کو 1000 ہی عام پڑھا طور جائے گا. نہیں, تو 10 کو ہی 1000 بولتے ہیں نا. یہ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے کہ 10 نہیں پڑھتے ہیں اور عام طور پڑھتے ہیں؟ ہمارے کالج میں تو یہی پڑھایا گیا تھا. تو بتا دیجیے گا اپنے کالج کا اساتذہ کو دونوں کہ ہوتا ان کے پاس بغیر دلیل کے غلط بات ہے. بولا کہ اسے کچھ بھی کوئی بات نہیں ہے. تحقیق کی زبان میں قاضی عبدالودود نے کس کو کہا جھوٹوں کا بادشاہ. تحقیق کسی کا نام ہے, کسی نے کسی کو نہیں چھوڑا. شہزاد عظیم کیا کہا, جھوٹوں کا بادشاہ کہا. غالب کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا, خود کو بڑا کرنے کے لیے اب سمجھ کو استاد مان لیا. تو ایسا تھوڑی چلتا ہے. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور اسی میں قرآن میں ایک بات کہے گی 5ویں پارے میں کہ وقت پڑے تو اپنے باپ کے خلاف بھی گواہی دو. تحقیق کی زبان ہے تو یہ سمجھ لیجیے آپ. یہاں میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے پہلے. یہ 1035 جو لکھا ہے میلاد عیسوی نے ہجری, یہ دیکھیے عیسوی میں کیا کہا 10 سال کم کر دیا 1625 ہو گیا. اس کو سمجھیے. اور دو مثال دے رہا ہوں آپ کو. ریجوائن آواز کلیئر نہیں ہے, یہ کرتا ہوں تحقیق کے ساتھ بتا دیں گے. ہاں بتا دیجیے گا, آواز صحیح نہیں ہے. نہیں یار آپ لوگ اتنا بولنے لگتے ہو نا سب لوگ, تو اس کی وجہ سے نا آواز گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ لوگ بولیے نہیں, کئی مرتبہ شرکت کریں. یہ کلاس ہے نا, یہ کلاس ہے. آپ لوگوں کو کسی کو نہیں بولنا ہے, بس آپ لوگ کمنٹ جواب دیجیے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. خرچہ بڑھا رہا لیپ ٹاپ میرا, اب اسٹینڈ منگانا پڑے گا. چلیے اچھا, سبرس کی جو کتاب ہے اس کا سن تو کمنٹ کیجیے. تو ابھی میں بتاتا ہوں پھر سے, وہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سبرس کا لکھیے. سبرس جو کتاب ہے اس کا لکھیے تو
दोनों सन लिखिए, एक नहीं दोनों, दोनों लिखिए तब पता चलेगा, बात समझ में आएगी। लिखिए जल्दी से। 1045 1035 है ना, 10-10 साल का फर्क है ना, तो आखिर यहाँ क्यों 30 साल का फर्क हो गया फौरन? सन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसकी तहकीक ज़रूरी है। यहाँ दिया 1074 और 1644, तो इससे अब दलील पकड़िए कि जब सन हिजरी और ईस्वी में 10 साल का फ़र्क है तो तुरंत जो है कि 30 साल का फ़र्क कैसे हुआ? या तो ये ईस्वी वाला सन में गड़बड़ी है या ये हिजरी वाले सन में गड़बड़ी है, इन दोनों में से किसी में डंडी मारा गया है, ये तहकीक की ज़रूरत है। समझ में आ गया? आ गया जी। माइक नहीं खोलिए, कमेंट कीजिएगा, माइक खोलते हैं तो फिर आवाज़ गड़बड़ होने लगे। अब आवाज़ सही आ रही है ना? ठीक है। शुमाली हिंद की कदीम तरीन मसनवियों में शेख अब्दुल्ला अमीन की मसनवी फ़िक़्ह हिंदी अहम है। अमीन ने ये मसनवी औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में लिखी। हाँ, जो चीज़ें याद करने को उसको याद कर डालिए। फ़िक़्ह हिंदी किसकी है? शेख अब्दुल्ला अमीन की मसनवी है। और ये मसनवी किसके ज़माने में लिखी गई? औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में लिखी गई। ठीक है। और कह रहे हैं कि फ़िक़्ह हिंदी में क्या बातें बयान की गई हैं? तो मसाइल के बातें बयान की गई हैं। जैसे तसव्वुफ़ की बातें किसमें? बस नसीरुद्दीन हाज़मी ने कहा ना कि सबरस ऐसी किताब है जिसमें किरदारों के ज़रिए और गैर फित्र के ज़रिए जो है कि माफ़ौक़ुल फ़ितरत वसाइल के ज़रिए तसव्वुफ़ की बात को समझाया गया है। तो इसी तरह कह रहा है कि फ़िक़्ह हिंदी में तसव्वुफ़ तो नहीं, फ़िक़ही मसाइल को बयान किए गए हैं। इस तरह आगे आ जाइए। इसी दौर में महबूब आलम उर्फ शेख जुयू ने 4 मसनवियाँ लिखी। अब इनकी जो मसनवियाँ इसको आपको याद कर लें। नंबर 1 महशरनामा, दर्दनामा, ख्वाबनामा और धीरनामा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब मुअन्नस का जिक्र है तो अनहा, मुज़क्कर का जिक्र है तो अनहु। इसको लिख लीजिए कापी में। इनमें दर्दनामा तवील मसनवी है जो तकरीबन 3,500 अशार पर मुश्तमिल है। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और विसाल के वाक़यात बयान किए गए हैं। किसमें? दर्दनामा में। दर्दनामा किसकी है? कमेंट कीजिए फ़ौरन। शेख जुयूं। चलिए कुछ और पढ़ लीजिए, एक दो महबूब आलम। ठीक है। शुमाली हिंद के कदीम शुअरा में जाफ़र जटली नहायत अहम है। उनके कलाम में मसनवियों की तादाद काफ़ी है। उनकी एक तवील मसनवी ज़फ़रनामा औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह गाजी है, जिनमें आलमगीर के फतूहात दक्कन का जिक्र है। दूसरी मसनवी मुख्तसर मसनवियों में दर सिफ़त पीरी, तोतीनामा, सिफ़त जुलूस आज़म शाह, बाद आलमगीर, मरसिया औरंगज़ेब और सीसनामा काबिल ज़िक्र है। ठीक है। इस तरह जाफ़र जटली के मसनवियाँ देख लीजिए। जाफ़र जटली का हमासर इस्माइल अमरोहवी है, जिसने 2 मसनवियाँ तवल्लुदनामा बीबी फातिमा और क़िस्सा मुअज्जज़ा अनार इन्होंने लिखी। फ़ायज़ का जिक्र आता है। करें फ़ायज़ अहम शायर हैं जिन्होंने 16 मसनवी लिखी। कितनी मसनवी लिखी हैं? 16। इनके चंद मसनवियों के नाम ये मुनाजात। अच्छा, मुनाजात किसकी नज़्म में बताइए तो कमेंट कीजिए फ़ौरन। मुनाजात कमेंट कीजिए फ़ौरन। हाली, बहुत अच्छा। सब लोग कमेंट कीजिए, हाँ किसी जी। के बाकी ना चाहिए। देखिए कि क्यों ना कमेंट करना पड़े। एक दूसरे का भी अगर कमेंट कर रहे हैं देखकर, इसका फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, मुनाजात हाली की नज़्म है और मुनाजात जो है कि मसनवी किसकी है, इसका भी कमेंट कीजिए कमेंट। इस तरह आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फ़ायज़ देहलवी, बहुत अच्छा। इस तरह दरमदा शाह विलायत, तारीफ़ पंघट, तारीफ़ होली, दर सिफत भंगेरन, तारीफ़ जोगन और दर वस्फ़ काछन, तारीफ़ तनबोलन, मालन और गुजरी। ये सब पुराने नाम हैं जो उन्होंने लिखे थे, लेकिन जो मशहूर है उसको याद करें। फ़ायज़ किसके हम असर थे ये भी देख लीजिए। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू थे। फ़ायज़ के हम असर कौन थे? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। आराइश माशूक या आराइश खूबा के मौजू पर आराइश माशूक या आराइश खूबा के मौजू पर 225 अशार की एक मसनवी लिखी है। उस ज़माने के पोशाकों और लवाजिमात आराइश का पता चलता है। किसने लिखी है? फ़ायज़ के हमस नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू हैं।
यानी नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू के मसनवी का नाम क्या है? आराइश माशूक या आराइश खूबा। अब नहीं, आबरू ने नहीं, देख के पढ़िए, शाह मुबारक दिन, हाँ ठीक है, शाह नजमुद्दीन मुबारक आबरू, इन्होंने लिखा आराइश माशूक या आराइश खूबा। अच्छा, इसका मौजू क्या है? कहने पोशाक और लवाजिमात, उस ज़माने में लिबास कैसे होते थे, इनको जिक्र किया। इस तरह कह रहे कि शाह हातिम का शुमार भी शुमाली हिंद के कदीम शुरा में होता है। उनके मुरतबा दीवान ज़्यादा में 5 मसनवियाँ शामिल हैं। ये पूछा जा चुका है एनटी में कि दीवान ज़्यादा किसका है? शाह हातिम का है। अब ये पूछा जाएगा कि इसमें कितनी मसनवियाँ, तो 5। सरापा, मसनवी सरापा, साकिनामा, वस्फ़ कहवा, वस्फ़ तंबाकू व हुक्का, और मसनवी बहारिया मुसम्मा बज़्म इशरत, बज़्म इशरत, ये 5। अच्छा चलिए, इन मसनवियों को उन्वानात से उनके मौज़ूआत का पता चलता है। हातिम के मसनवियों में बज़्म इशरत निस्बतन तवील है। इनमें कई उन्वानात हैं, जैसे हमदो तौहीद, तमहीद, आगाज़, सुखनो सुखन वस्फ शाहजहां आबाद दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। इस तरह आखिरी में आ जाइए। इसी ज़माने में दिल्ली के अदबी मरकज़ से दौर फुलवारी शरीफ बिहार में शायतुल्लाह जौहरी ने 1161 हिजरी व मुताबिक करें 1748 में गौहर जौहरी के नाम से, गौहर जौहरी फुलवारी शरीफ जो पटना मशहूर है। पटना कोई है इसमें से? जल्दी बोलिए फ़ौरन। इसमें 2304 अशार पर मुश्तमिल है। मेरे रिश्तेदार रहते हैं सर। तुम तो क्या बोले, अब हम बोले क्लास में कौन है, तो तुमको अब रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार पढ़ने आ रहे हैं यहाँ। गौहर जौहरी के नाम से 2304 अशार पर मुश्तमिल एक मसनवी लिखी जिसमें कुछ किस्से और इश्क मारिफत की बातें बयान की गई हैं। शुमाली हिंद के इन अवलिन शुआरा के कारनामों की बदौलत मीर सौदा के अहद के आने तक उर्दू में मसनवी की रिवायत एक पुख्ता सूरत इख्तियार कर ली थी। यहाँ तक पढ़ लिया। अब आएंगे तो नया सबक शुरू करेंगे, मतलब अभी क्लास के बाद। तो ये थोड़ा और पढ़ा देते हैं, अभी मीर और असर नहीं पढ़ना हमें। अब हमको आपको दिखाते हैं, ये जो पढ़ाया ना इसको याद कर लीजिएगा। जो कदीम मसनवियाँ हैं, यहाँ से सवालात ज़्यादा बनते हैं, यहाँ सवालात ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। गौवासी निसाब में नहीं है, लेकिन देख सकते हैं। गौवासी देख लेते हैं, 47 कुछ मिल जाए, इस कामयाबी मिल जाए कुछ। अच्छा, इनमें जो किताबें हैं ना, ये हर सबक के आखिर में आएंगी, इसको पुख्ता याद कर लीजिएगा। जैसे किताबें कौन कौन सी है? उर्दू मसनवी का इर्तिका, अब्दुल कादिर सरवरी। उर्दू शायरी का मिजाज, वजीर आगा। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। उर्दू मसनवी का इर्तिका शुमाली हिंद में, ये कौन हो जाएगा? सैयद मोहम्मद अकील रिजवी। ये आपको पुख्ता याद होनी चाहिए। अभी के लिए रहने देते हैं, आते हैं इत्मीनान से, तो फिर इसके आगे पढ़ाते हैं। जब तक आप लोग इसको एक मतलब दोहरा लीजिए हर हाल में। और ये किताब मैं अभी टेलीग्राम में भेज देता हूँ, वहाँ से आप लोग दोहरा लीजिए। कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। ये मसनवी आप याद कर लीजिए।